میں نے شطرنج کی ایک بازی جمائی تھی اور اب تک ورتمان نامی وہ موہرا میری مرضی کے عین مطابق پیش قدمی کر رہا تھا، اور اس نے اب تک اپنے ساتھیوں کی موت پر اور اس کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا تھا وہ بھی میری توقع کے عین مطابق تھا۔ اب میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اس کھیل کا انجام بھی میری توقع کے عین مطابق ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ورتمان کی طرف سے غصیل رد عمل کا اظہار کچھ دھیما پڑتا جا رہا ہے۔ تبھی میرے منتظر اور حساس کانوں نے یک کے بعد دیگرے 2 بار دھاتی کھٹاک کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، بلکہ میرا زوردار قہقہا لگانے کو دل چاہا۔ وہ بدتینک چوہا میری طرف سے لگایا گیا للچا دینے والا چارہ اچکنے کے لیے شکنجے کی طرف بڑھنے والا تھا۔ میں دبے پاؤں کمرے کے کونے کی طرف آگے بڑھا اور پھر تیزی سے کھڑکی کے دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ میرے کان کھڑکی کے دوسری طرف سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہلکی سی کھٹپٹ ہوئی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ باہر کی طرف کھل گئے۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ورتمان کھڑکی سے باہر جھانک کر گرد و پیش کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کے کان بھی باہر سے آنے والی کسی آواز کی جستجو میں ہوں گے۔ میرا بیٹا اس دوران میں اپنی نال کی طرف سے میرے دائیں ہاتھ کی مضبوط گرفت میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ پہلا ہی وار اتنا کارگر ہونا چاہیے کہ اس کے دماغ کی بتی گل ہو جائے۔ اسے گولی چلانے کا موقع مل گیا تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کھڑکی میں کچھ کھٹپٹ سنائی دی۔ میں پستول کے دستے سے ہتھوڑے کا کام لینے پر تیار ہو گیا، مگر تبھی کھڑکی سے کوئی لمبوتری سی چیز باہر نکلتی دکھائی دی۔ میں چونکا، پھر میں نے پہچان لیا۔ یہ مجھ سے بچھڑی ہوئی ونچسٹر رائفل تھی، جسے ایک ہاتھ کھڑکی سے باہر لٹکا رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ ورتمان ہی کی کارستانی ہو سکتی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ شخص میرا کام مزید آسان بنانے پر تلا ہوا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ونچسٹر رائفل کو کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹک لگا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ورتمان کا ہاتھ ایک بار پھر کھڑکی کے اندر غائب ہو گیا۔ تبھی میں تیزی سے آگے بڑھا اور رائفل اپنے قبضے میں کر لی۔ میں نے اپنا بریٹا لباس میں اڑس لیا اور پھر تیزی سے رائفل کے سیفٹی لاک کو بالکل پیچھے کی طرف کر کے بولٹ سمیت مکمل لاک کر دیا۔ اس کے بعد اسے پلک جھپکتے میں نال سے پکڑ کر لاٹھی کے انداز میں سر سے اوپر بلند کیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مجھے فوجی بوٹوں والے 2 پاؤں کھڑکی سے باہر لٹکتے نظر آئے۔ میں صبر سے انتظار کرتا رہا، پھر آدھا دھڑ باہر نکلا۔ بالآخر ورتمان کھڑکی سے باہر نکل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھ پاتا میں نے پوری قوت سے رائفل فضا میں لہرائی اور اس کا دستہ ترچھا کر کے ورتمان کی کھوپڑی کے ایک طرف دے مارا۔ میرے بازوؤں کو لگنے والا جھٹکا ضرب کی شدت بتانے کے لیے کافی تھا۔ وار اتنا کاری تھا کہ ورتمان کو چیخنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ وہ تیورا کر پہلے کھڑکی کے کھلے پٹ سے ٹکرایا اور پھر دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے جسم نے نزا کے عالم میں چند بار جھٹکے لیے اور پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کی بدروح کبھی مجھ سے شکایت یا فریاد کرنے آئی تو میں صاف کہہ دوں گا، میں نے تو اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ میں نے تو کہا تھا نا کہ میں اسی صورت میں تمہاری جان لوں گا کہ تم خود میری جان لینے پر تل جاؤ۔ انگلی بھر لمبی گولیوں سے لبلب بھری یہ ونچسٹر لے کر اور اس کے چیمبر میں گولی لوڈ کر کے تم مجھے سلام کرنے تھوڑی کھڑکی سے باہر نکلے تھے۔ کیوں میں غلط بیانی سے تو کام نہیں لے رہا نا؟ میں نے سر جھٹک کر ان بے موقع خیالات سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اصل آزمائش کا مرحلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ اس چوکی پر تعینات سیکیورٹی گارڈ سے جان چھڑانے کا بکھیڑا تو اس لیے سر پر لینا پڑا تھا کہ اس چوکی پر تعینات سیکیورٹی گارڈز کی نظروں سے بچ کر اس فلک بوس پانی کی ٹینکی تک پہنچنا لگ بھگ ناممکن لگ رہا تھا، اور یہاں آ کر اپنا کام مکمل کرنے کے دوران میں میرے اندیشے میں حق بجانب ہونے کی تصدیق بھی ہو چکی تھی۔ خصوصاً کیپٹن بجرنگ مان کی طرف سے جاری کیے گئے حکم کے بعد تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اگر میں اچھی خاصی روشنیوں کی زد پہ موجود کھلے میدان سے گزر کر پانی کی ٹینکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تو اس چوکی سے دوربین کے ذریعے مسلسل جائزہ لینے والے سیکیورٹی گارڈز کی نظروں میں بآسانی آ جاتا اور یہ مجھ پر اپنے نشانے آزما کر بآسانی مار گراتے۔ اس چوکی پر دھاوا بولنا میرے لیے اس اعتبار سے بھی فائدہ مند ثابت ہوا تھا کہ اب میں نے اس طرف گھات لگائے بیٹھے اپنے دشمنوں کو پہلے ہی مار گرایا تھا، جس کی وجہ سے میرے لیے اب کام مکمل کرنے کے بعد زندہ سلامت یہاں سے فرار ہونے کے امکانات بڑھ گئے تھے۔ اتنی حسین اور قیمتی ونچسٹر رائفل کو وہاں چھوڑ کر جانا دل کو کافی ناگوار لگا، مگر دستے پر چپچپے ملغوبے نے ملال کم کر دیا۔ میں نے رائفل ورتمان کی لاش پر پھینکی اور کمرے کے سامنے سے گزر کر تیزی سے 24 زینے کی طرف بڑھا۔
मैं लगभग उड़ता हुआ कमरे की छत पर पहुंचा और फिर एक ही जस्त में 3 सीढ़ियां पार करके मचान पर पहुंच गया। ताहम मैं इस दौरान में रुकू के अंदाज में झुक चुका था। गुरप्रीत की लाश अब अकड़ने लगी थी। मैं उसे नजरअंदाज करके सामने मुंडेर के साथ इस्तादा नीम खुदकार ईशापुर 1A1 राइफल की तरफ बढ़ा। मैंने उसे कब्जे में लेकर जायजा लिया। लगभग नई नकोर राइफल में 30 गोलियों वाला मैगजीन लगा हुआ था। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो सामने वाली मुंडेर के साथ उसी तरह की मजीद 3 राइफलें एक लंबूतरी सी मेज पर दराज दिखाई दी। मैं गुरप्रीत की राइफल उठाए तेजी से उधर बढ़ा। उन तीनों राइफलों में भी लोडेड मैगजीन लगे नजर आए। मुझे यकीन था कि यहीं कहीं गोलियों का बक्स भी मिल जाएगा, मगर मैंने लालच में आने की बजाय उन तीनों राइफलों के मैगजीन अलग करने पर इक्तिफा किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे कैनवस का एक झोला भी मिल गया। मैंने उसमें मौजूद काठ कबाड़ एक तरफ खाली करके गले में लटका लिया और तीनों मैगजीन उसमें डाल लिए। अब कोई आधा मील मार करने वाली नीम खुदकार राइफल के साथ 120 गोलियों का जखीरा भी मेरे कब्जे में आ चुका था। मेरा बरेटा अलग मेरे इशारे का मुंतजिर था। मेरे हौसले आसमान को छूने लगे थे। अब मैं पूरी हमलावर पलटन का सामना करने के लिए तैयार था। मैं उसी खमीदा हालत में जीने की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ और पलक झपकते में मुड़कर गुरप्रीत की लाश की तरफ बढ़ा। उसे पलटते ही मेरा गौहर मुराद नजरों के सामने आ गया। दर हकीकत मैं उसी की खातिर तो यहाँ आया था और उसे ही भूल कर मैं यहाँ से रवाना होने लगा था। मैंने उसे बेताबी से उठाया और इश्तियाक भरी नजरों से जायजा लिया। वो बायनो प्रिज्म मार्क 2 दूरबीन खासी बेदर्दी से इस्तेमाल किए जाने के बावजूद उम्दा हालत में थी। मैं जब गुरप्रीत को ठिकाने लगाने यहाँ आया था तो वो उसी दूरबीन से 4 दीवारी से बाहर का जायजा ले रहा था। उस पर दर्ज आदाद के मुताबिक वो सामने मौजूद किसी भी चीज को 30 गुना नजदीक दिखा सकती थी। मैंने कोई 3 पाव वजनी वो दूरबीन आंखों से लगाई और पानी की टंकी की तरफ रुख किया। यकलख्त उसका अक्स मुझे खुद से बेहद करीब दिखाई दिया। मुझ पर पहली बार इंकिशाफ हुआ कि उस दरख्तनुमा टंकी के सफेद तने में ऊपर से नीचे तक मखसूस फासलों पर खिड़कियां मौजूद हैं, जिनके हम रंग किवाड़ उस वक्त बंद दिखाई दिए। मैंने अंदाजा लगाया कि ये खिड़कियां खोखले सुतून के अंदर ऊपर तक जाने वाले जीने के साथ साथ बनाई गई हैं, जबकि कवी इम्कान है कि ऐसी खिड़कियां सुतून के चारों तरफ मौजूद होंगी। इस मुशाहिदे ने मेरा दिल खुश कर दिया। यानी अब मुझे इर्द गिर्द का जायजा लेने के लिए 150-200 सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं थी। शायद चारों अतराफ में निस्फ ऊंचाई पर वाक़े किसी खिड़की से जायजा लेने से भी मेरा काम बन जाए। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लिहाजा मैं हत्तुल इम्कान तेजी से जमीन पर पहुंचा और राइफल संभाले बढ़ने लगा। मैं निगरान चौकी से देखे जाने के खतरे से जान छुड़ा चुका था, लिहाजा मैं अब नीम हमवार मैदान में तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। मुझे सड़क तक पहुंचने में बहुत ज्यादा देर न लगी। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर दाएं तरफ का जायजा लिया। मुझे ताहद्दे नजर जंगल तक कोई परेशान कुन चीज दिखाई न दी। जब सामने का जायजा लिया तो 1.5 फरलांग के फासले पर वाक़े रिएक्टर की तरफ भी बज़ाहिर मैदान साफ दिखाई दिया। मुझे यकीन था कि उस तरफ से मुझे उसी सूरत में देखा जा सकता है कि वहाँ भी कोई दूरबीन आंखों से लगाए इस तरफ का जायजा ले रहा हो, जिसका इम्कान 100 में से 1 के बराबर ही था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और सड़क पार करके ओबड़ खाबड़ मैदान से तिरछे रुख गुजर कर पानी की टंकी की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे करीब से करीब तर होते देखकर मेरा खून बढ़ रहा था। अलबत्ता मैं मुसलसल इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। रात का शायद 3रा पहर शुरू हो चुका था। ऐसे में किसी की नजरों में आने का इम्कान मुझे वैसे भी कम ही लग रहा था। बिलाखिर मैं टंकी के इतना करीब पहुंच गया कि वो मुझे अपने सर पर साया फगन महसूस होने लगी। उसके गिर्द मोटे आहनी तारों का एक अहाता मौजूद था, मगर उसका दरवाजा मुझे खुला नजर आया। मैं बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। कोई 25 गज आगे बढ़ने के बाद मैं टंकी के जखीम खोखले सुतून के ऐन पास पहुंच गया। उस सुतून का मुहीत मेरे साबिका अंदाजे के ऐन मुताबिक लगभग 10 गज रहा होगा, जो बुलंद होने के साथ साथ कम होता जा रहा था। मैंने उसका चक्कर लगाया तो दाएं तरफ के पहलू में 1-2 किवाड़ों वाला एक चौड़ा सा आहनी दरवाजा दिखाई दिया, जिसमें एक भारी भरकम सा कुफल लगा हुआ था। मैंने उस पर राइफल का दस्ता आजमाने का सोचा, मगर फिर मैं ठहर गया। इतनी बुलंद टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए कोई भी ताकतवर बिजली का इंजन नस्ब किया गया होगा, जिसे चलाने और देखभाल के लिए कई अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात होगा, जिनका ठिकाना इसी अहाते में कहीं होगा। मुझे फौरन ही एक बड़े और एक छोटे कमरे पर मुश्तमिल मुख्तसर सा क्वार्टर सामने वाली जालियों की बाड़ के पास नजर आया। उसका वाहिद दरवाजा उस वक्त बंद था।
मैंने सोचा कि कम से कम ये इत्मीनान कर लूं कि वहां मौजूद अफराद उस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। कुफल टूटने की आवाज से तो शायद उनकी नींद न टूटती, मगर बेदारी की हालत में रात के सन्नाटे में खटाके की बुलंद आवाज उन्हें चौंका सकती थी। मगर फिर मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया। मैं एक मौहूम से अंदेशे की वजह से मजीद वक्त जाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने राइफल सर से बुलंद की और उसके दस्ते से अच्छी खासी कुव्वत के साथ कुफल पर तिरछी जरब लगाई। पहली ही जरब से कुफल खुलकर कुंडी से झूल गया। राइफल का दस्ता फौलादी कुफल से टकराने पर खासा जोर का धमाका हुआ था। मैंने जल्दी से क्वार्टर की तरफ देखा और साथ ही राइफल की नाल का रुख उस तरफ कर दिया। मैं धक धक करते दिल के साथ इंतजार करता रहा, मगर क्वार्टर के दरवाजे में कोई जुम्बिश नहीं हुई। बिलाखिर मेरे तने हुए आसाब एक बार फिर पुरसुकून होते चले गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कुफल कुंडे से निकालकर एक तरफ फेंकते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर तारीकी थी। मैंने मचान से हाथ आए हुए माले गनीमत में शामिल टॉर्च रोशन करके अंदर का जायजा लिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। खोखले सुतून के शिकम में वाक़े वो जगह गोल कमरे की शक्ल में दिखाई दी। मैंने देखा एक चौड़ा सा जीना दीवार के साथ बल खाता हुआ रफ्ता रफ्ता बुलंद हो रहा है और ऊपर की तरफ जाते हुए नजरों से ओझल हो गया है। वहीं दाएं तरफ वाली दीवार के साथ फर्श पर एक बहुत बड़ी मशीन रखी थी, जिसने कमरे का बहुत बड़ा हिस्सा घेर रखा था। मैंने डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल पंप देखे थे। ये मशीन साख्त में तो ट्यूबवेल से मुशाबे थी, मगर उसका हजम कई गुना था। मैंने करीब जाकर जायजा लिया। मैंने देखा कि दीवार से निकलने वाला कम से कम 1 फुट का फौलादी पाइप उस मशीन से मुंसलिक है और फिर उसी तरह का एक पाइप मशीन के ऊपरी हिस्से से निकलकर दीवार के साथ साथ ऊपर टैंकी की तरफ जा रहा है। उस फौलादी पाइप को बहुत बड़े बड़े आहनी शिकंजों के जरिए दीवार के साथ मुंसलिक किया गया था। ऊपर की तरफ जाता जीना जब उस पाइप के पास पहुंचता तो उस मकाम पर एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में चौड़ा हो जाता। मैंने जो खिड़कियां देखी थी वो जीने के कोई 25-30 गज बुलंद होने के बाद शुरू होती थी और मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वो खोखले सुतून के चारों तरफ वाक़े थी। फिल वक्त इतना मुशाहिदा काफी था। मैंने राइफल शाने से लटकाई और कदम जमा जमा कर जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही देर के बाद मैं पहली खिड़की तक पहुंच गया जो रिएक्टर्स वाली समत खुलती थी। दूरबीन से मुशाहिदे के मुकाबले में वो अब खासी बड़ी दिखाई दे रही थी। उसके किवाड़ों में अंदर से चटखनी लगी हुई थी जो उस वक्त बंद थी। मैंने जल्दी से चटखनी खोली तो दोनों रिएक्टर्स और दीगर इमारतें मेरी नजरों के सामने आ गईं। मैंने बस एक नजर डालकर खिड़की दोबारा बंद कर दी। असल मंजर तो मजीद ऊपर वाक़े खिड़कियों से दिखाई देने वाला था। मैं एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हिजान के मारे मेरी रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई थी, जिसके नतीजे में मेरी सांस फूलने लगी थी। मैंने अगले प्लेटफॉर्म पर ठहर कर अपनी सांस दुरुस्त की और फिर दरमियानी रफ्तार से अपना सफर दोबारा शुरू किया। अगली खिड़की उस निगरान चौकी की तरफ खुलती थी जिस पर तैनात पहरेदारों को मैं खून में नहलाया था। मैंने खिड़की खोलकर उस तरफ एक सरसरी सी नजर डाली। दूरबीन ने मुझे उस सड़क और उससे जरा हटकर चलते जंगल के आखिरी सिरे तक का सब मंजर नीम तारीकी के बावजूद खासा वाज़े करके दिखा दिया था। मैंने निगरान चौकी का जायजा लिया तो हस्बे तवक्को वो बिल्कुल वीरान नजर आई। यकलख्त मेरा दिल धड़का। अगर वहां से 1.5 फरलांग के फासले पर वाक़े अगली निगरान चौकी से दूरबीन के जरिए जायजा लिया गया तो उन्हें भी ये चौकी सिक्योरिटी गार्ड से खाली दिखाई देगी। दूसरी बार भी यही मुशाहिदा हुआ तो वो यकीनन तजस्सुस का शिकार होकर गुरप्रीत और वर्तमान से वायरलेस पर राब्ता कायम करने की नाकाम कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्हें यकीन हो जाएगा कि कोई संगीन गड़बड़ है और वो फौरन कैप्टन बजरंग मान को खबरदार कर देंगे। हो सकता है कैप्टन बजरंग मान खुद ही ताज़ा तरीन सूरत हाल की खबर लेने के लिए उस चौकी वालों से राब्ता करने की कोशिश करे। मुझे अपने रगो पै में इस्तराब की लहर दौड़ती महसूस हुई। मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। ये सुकूत तूफान से पहले की खामोशी के मानिंद है। जल्द ही बहुत बड़ा हंगामा बर्पा होने वाला है। खैरियत इसी में है कि मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करूं। मैं उस वक्त तक तकरीबन 55-60 सीढ़ियां चढ़ चुका था। सतह जमीन से मेरी बुलंदी काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने समंदर की तरफ वाली खिड़की खोलकर दूरबीन से जायजा लिया। मुझे पता लगा कि 8वीं-9वीं रात का चांद हल्के बादलों की ओट से बाहर आ चुका है। हद नजर तक दिखाई देने वाले समंदर की लहरें खासी मुंहजोर दिखाई दे रही थीं और चांदनी में बार बार चमक उठती थी। तभी मुझे कुछ अजीब चीजें समंदर में तैरती नजर आईं। मैं ये मंजर देख कर चौंका। चांद की महदूद रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे स्याह रंग की कोई गोल मखलूक समंदर की लहरों से अटखेलियां कर रही है।
बगौर देखने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि ये कौन सी मखलूक हो सकती है। अगर वो कोई देवकामत मछली भी थी तो वो तैर कर आगे बढ़ने की बजाय समंदर से सर निकाले एक जगह कैसे हिलकोरे खा रही है। और मैंने बिल्कुल गोल सर वाली ऐसी मछली के बारे में तो कभी पढ़ा है न सुना है। वो मखलूक किनारे से कोई 100 गज के फासले पर मौजूद थी और मुसलसल एक ही जगह दिखाई दे रही थी। मैंने डायल घुमाकर दूरबीन का अक्सा आगे पीछे किया। उस मखलूक का अक्स तो कुछ ज्यादा वाज़े न हो सका, मगर तभी मुझे उससे कोई 40 गज दाएं तरफ भी बिल्कुल उसी तरह का गोल स्याह हयूला लहरों पर ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलकोरे खाता नजर आया। मेरी हैरानी अब एतदाल की हद से बाहर निकल चुकी थी। मैंने अपने तजस्सुस से मजबूर होकर दूरबीन में दिखाई देने वाला मंजर समंदर की सतह पर मजीद आगे बढ़ाया तो इंकिशाफ हुआ कि उनके अतराफ में बिल्कुल उसी तरह 2 अजसाम मजीद लहरों की सवारी कर रहे हैं। मैंने अपने ताज्जुब को एक तरफ रखते हुए जहन को उन अजसाम को पहचानने और उनकी वहां मौजूदगी का मकसद समझने के लिए महमेज किया। मेरी कोशिश नाकाम नहीं रही। मेरे जहन ने तज्जिया पेश किया कि ये चारों अजसाम एक दूसरे से लगभग यकसां फासले पर एक ही अंदाज में मुसलसल मौजूद हैं, लिहाजा ये कोई जानदार मखलूक नहीं हो सकती। ये यकीनन हजरत इंसान की ही कोई कारस्तानी है। और फिर मेरे जहन ने वो मारा का नारा लगाया। उसके साथ ही मेरी समझ में आ गया कि मेरी नजरों की गिरफ्त में आने वाले वो चारों अजसाम दरअसल क्या चीज हैं। साथ ही ये भी यकीन हो गया कि उनकी असल तादाद 4 से ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा होगी। उन गोल स्याह हयूलों से मेरा फासला निस्फ से 1 फरलांग तक रहा होगा। उसके बावजूद उनका इतना वाज़े नजर आना साबित करता था कि उनकी ज़खामत अच्छी खासी रही होगी। मैंने दूरबीन आंखों से हटाकर ईशापुर 1A1 राइफल शाने से लगाई और शिस्त से उन स्याह गोलों में से एक पर निशाना साधने की कोशिश की। मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि नंगी आंख से वो गोला इतना दूर और धुंधला दिखाई दे रहा था कि लगभग समंदर की लहरों से हम आहंग ही था। मुझे यकलख्त अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। वो विंचेस्टर राइफल अपनी दूरबीन की बदौलत ऐसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल के लिए बहरहाल बहुत मौजू रहती। खैर फिलहाल तो उस राइफल की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उन स्याह गोलों को गोली से उड़ाने का मुझे कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता ऐसी कोई कामयाब या नाकाम कोशिश मुझे मुश्किल में जरूर फंसा सकती थी। मैंने राइफल शाने से लटकाकर दूरबीन एक बार फिर आंखों से लगा ली। मेरी बिनाई अब धुंधली चांदनी से मानूस हो चुकी थी, जबकि दूरबीन के बड़े अदसे भी ज्यादा से ज्यादा मयस्सर रोशनी जज्ब करके मंजर को वाजे कर रहे थे। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो जखीम स्याह गोले दरअसल बहरी बारूदी सुरंगें थी। मुझे नौमरी से जंग अजीम दोम से मुताल्लिक मालूमाती मवाद पढ़ने का शौक था और उसी जमाने में मुझे इस तरह की बारूदी सुरंगों और बहरी जहाजों के लिए उनकी तबाहकारियों के बारे में कई बातस्वीर मज़ामीन पढ़ने का मौका मिला था, जिनके मुताबिक ऐसी हर बारूदी सुरंग में 2 मन के लगभग धमाका खेज मवाद होता था। जैसे ही कोई बहरी जहाज या आबदोज ऐसी किसी बारूदी सुरंग से टकराती, बारूदी सुरंग जबरदस्त धमाके से फट जाती। ऐसी किसी बारूदी सुरंग से टकराने के बाद किसी बहरी जहाज या आबदोज को इतना शदीद नुकसान पहुंचता कि उसका गर्काब होना लगभग यकीनी हो जाता। वैसे तो जंगी बहरी जहाजों या आबदोजों के जरिए फैलाई जाने वाली इन बारूदी सुरंगों को हमले और दिफा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उनकी जदीद अकसाम का अब भी किया जाता है। ताहम उनका सबसे अहम इस्तेमाल दुश्मन मुल्क के जंगी बहरी जहाजों और आबदोजों को साहिल समंदर पर वाक़े दिफाई तंसीबात के करीब आने और उन्हें गोलाबारी करके निशाना बनाने से रोकना होता है। मैं अंदाजा लगा सकता था कि तारापुर एटमी प्लांट को किसी बहरी हमले से बचाने के लिए समंदर में शायद कई मील तक ऐसी सैकड़ों बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया गया होगा। मुझे पता था कि ऐसी हर बारूदी सुरंग को लहरों के साथ बहकर दूर निकल जाने से रोकने के लिए एक जंजीर के जरिए बहुत भारी वजन से मुंसलिक किया जाता है, जबकि ये बारूदी सुरंगें जंजीरों या फौलादी रस्सों के जरिए आपस में भी मुंसलिक होती हैं। तभी मुझे लगा कि अगर विंचेस्टर राइफल उस वक्त मेरे पास मौजूद भी होती और मैं उस पर नस्ब दूरबीन की मदद से किसी बारूदी सुरंग को निशाने पर लेने पर कामयाब भी हो जाता, तब भी राइफल की गोली बारूदी सुरंग की मोटी फौलादी चादर में सुराख करके अंदर घुसने और बावर्दी मवाद तक पहुंचने के बाद उसे तबाह करने में कामयाब न हो पाती। बारूदी सुरंगों की मौजूदगी से वाकफियत मेरे लिए कारामद मालूमात की हैसियत जरूर रखती थी, मगर फिलहाल उनके बारे में मजीद दिमाग खपाना वक्त के ज़िया के मुतरादिफ था। भारत अपने इस अहम तरीन मंसूबे की हिफाजत से गफलत कैसे बरत सकता है। मैंने खिड़की बंद कर दी और एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा।
कोई 15-20 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अगली खिड़की के पास पहुंच गया, जो वर्तमान और गुरप्रीत वाली निगरान चौकी की तरफ खुलती थी। मैंने जहन पर रफ्ता रफ्ता गलबा पाती बेदली के ज़ेरे असर सोचा कि इसे खोले बगैर आगे बढ़ जाऊं, मगर फिर अक्ल ने समझाया कि इस रुख का जायजा लेना मेरी सलामती या मिशन की कामयाबी के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे दुश्मन इस निगरान चौकी पर तैनात गार्ड्स के अंजाम से वाकिफ हो चुके हों और अब दीवानावार मुझे तलाश करते फिर रहे हों, और इससे पहले कि मुझे खतरे का इदराक हो वो इस टैंकी तक पहुंच जाएं। ऐसी सूरत में मुझे शायद ये सीढ़ियां उतरकर वापस जमीन तक पहुंचना भी नसीब न होता। ये ख्याल आते ही मैंने फौरन खिड़की खोलकर दूरबीन आंखों से लगा ली। मैंने पहले दूर तक वीरान नजर आने वाली सड़क और फिर जंगल का जायजा लिया। जब खतरे के कोई आसार नजर न आए तो मैंने रस्मी तौर पर निगरान चौकी का जायजा लिया। मुझे हस्बे तवक्को वहाँ जिंदगी के कोई आसार नजर न आए। वैसे भी अब मेरी ज्यादा दिलचस्पी उसके आगे वाली यानी लगभग रतन के दफ्तर के अकब में वाक़े निगरान चौकी की तरफ थी। इतनी बुलंदी से वहाँ का जायजा लेना मजीद आसान हो गया था। मैं दूरबीन का रुख अपनी कार्रवाई का निशाना बनने वाली चौकी की तरफ से हटाने ही वाला था कि अचानक मुझे एक ऐसा मुशाहिदा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। हो सकता है वो चीज पहले भी मेरी नजरों की जद पे आई हो मगर मेरी तवज्जो न पा सकी हो। मैंने जल्दी से दूरबीन जूम करके निगरान चौकी का मंजर मजीद करीब लाने की कोशिश की। काफी गौर से देखने के बाद मेरे इब्तिदाई अंदाजे की तस्दीक हो गई। वहाँ 2 रूसी साख्ता तैयारा शिकन मशीन गन्ने नस्ब थी। उनमें से एक का रुख समंदर की तरफ था और दूसरी 4 दीवारी के पार झांक रही थी। उनका असल रूसी नाम तो खासा तवील और पेचीदा था, मगर दुनिया भर के अस्करी हलकों में उसे DSHK यानी डश्क की उर्फियत से पहचाना जाता है। 50 कैलिबर की ये मशीन गन अपनी तबाहकारी की वजह से एक दहशतनाक शोहरत रखती है। मुझे ये तो हतमी तौर पर नहीं पता था कि डश्का मशीन गन की कारगर मार कितनी है, ताहम मुझे इतना अंदाजा जरूर था कि बालिश्त भर लंबी और कम से कम ½ इंच मोटी गोली के साथ फजा में परवाज करते लड़ाका तैयारे को मार गिराने वाली इस मशीन गन जितना तबाहकुन हथियार शायद ही कोई और हो। मुझे पछतावा सा महसूस हुआ। मुझे उस चौकी में मौजूदगी के दौरान पता चल जाता तो ईशापुर राइफल की बजाय उनमें से एक डश्का मशीन गन ही उठा लाता, मगर मुझे फौरन ही अपनी इस बचगाना ख्वाहिश पर हंसी आ गई। इतनी दूर से भी वाज़े दिखाई देने वाली ये ज़ख़ीम मशीन गन कोई मन भर वजनी तो रही होगी। मुझे पहले उसे सहपाया स्टैंड से उतारना पड़ता, उसके बाद दूसरा मरहला चौकी की छत पर से नीचे लाना होता। मैं उसे उतार कर जमीन पर लाने में कामयाब हो भी जाता, मगर उसके बाद वो मेरे किस काम आती? मुझे कौन सा जंगी तैयारे मार गिराने थे या बख्तरबंद गाड़ियों में मौजूद दुश्मनों को निशाना बनाना था? अव्वल तो इतनी भारी मशीन गन को स्टैंड पर रखे बगैर उससे फायरिंग करना और खुसूसन किसी हदफ को निशाना बनाना ही लगभग नामुमकिन था। मैंने वो ऊटपटांग सा ख्याल जहन से झटकने की कोशिश की। अब तो वैसे भी मैं उस निगरान चौकी पर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वहां से निकल आया हूँ और अपने मकसद के लिए कम से कम फिल वक्त बेकार इस भारी मशीन गन के हुसूल की खातिर दोबारा वहां का रुख करना कोई अकल की बात नहीं है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मैं दूरबीन आंखों से हटाकर खिड़की बंद करने ही वाला था कि मुझे अचानक सड़क के आखिरी सिरे पर रोशनी हरकत करती नजर आई। मैंने चौंक कर दूरबीन को रोशनी पर मरकूज किया। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि वो रोशनी मुतहर्रिक है। गालिबन मोटरसाइकिल गार्ड्स की एक और जोड़ी गश्त करने के लिए आ रही है। थोड़े से इंतजार के बाद वाजे हो गया कि वो रोशनी 2 हेडलाइट्स ही की थी, मगर चंद ही सानियों के बाद मुझे हैरत का एक और झटका सहना पड़ा। सड़क का मोड़ घूमने वाली रोशनियों की वो जोड़ी गश्त करने वाली मोटरसाइकिलों की नहीं, बल्कि एक फौजी जीप कम रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये मंजर देखकर मेरे जहन में यकलख्त कई वसवसे जाग उठे। क्या मेरी कार्रवाई का पोल खुल चुका है और अब मुझे तलाश करके मार गिराने की मुहिम शुरू हो चुकी है? और क्या वो मेरे पानी की इस टैंकी के अहाते में घुसने और ऊपर चढ़ने के मराहिल से भी वाकिफ हो चुके हैं?